Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can someone please confirm on the chat box whether my video and the audio is clear? Just to have a little bit of confirmation, can someone put on a chat box? Yes, sir, it's clear. Assalamualaikum. We'll take 2 more minutes and then we will start. Sharp on 7:05. Inshallah. Yeah, thank you. It's crystal clear. So kind of you. Thanks for the reply. We'll wait 1 more minute and then we'll straight away start our session because 5 minutes is just the buffer time we have to allot for because of technical reasons, some because of internet issues. Someone may not join on time, so 5 minutes is just the buffer time. I thank you for those who have joined on time. Today we are going to talk about burnout syndrome. There are a few more in the queue waiting in the room, so people are joining. Right, it's 7:05 on a Thursday evening. I welcome you all of you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh on a web series called Thankful Thursday. My name is Kalim Sayed and I am a leadership trainer and a life coach. Last, we have been started this series since past 1 week, and last Thursday we didn't do. We did it on Sunday, and we told that every Thursday we'll have this session. Last Sunday we discussed about leadership in times of crisis, and today we are going to discuss about burnout syndrome. Now, just a small introduction. Clanwin is the company where I am the founder of it, and we are into two different things. One is leadership training and life coaching, and second one is we help the younger employees to find a better job in terms of career counseling and employability skills. That's a small brief. You can go on our website and look for more details. And today, we are talking about burnout syndrome. See, the topic is very much relevant and related in today's scenario. We have been seeing these days how people are, just getting stressed, and the next level is burning out. And what is happening when the burnout happens? We all discuss today. Now, before let's start the slides, hope you all are seeing the slide. Let us understand what burnout syndrome is. How this webinar will go, I will just discuss. I will share the information. If you have got any questions, you can put it on a chat box, or in the last, we'll have one-to-one question and answers. If you have got any questions, you can post it on a chat box, or you can unmute and ask straight away the questions. So, what is burnout? What is burnout syndrome? As you can see on the screen, burnout has been defined in 1970s. The problem is going on since long time. And since 1970, scientists, people, psychologists, okay, psychiatrists, they have been researching on these fields. So burnout is anything that goes on for a prolonged period, be it your psychological issues, or be it the stress which you have been happening throughout the throughout what you have been going through. Someone has sent me a chat message. Hindi में भी बोलेंगे थोड़ा. We'll have this session in Hindi and English both at the same time. So I believe it can be managed between Hindi and English. स्ट्रेस जो है एक ऐसी चीज जो आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, फिक्रमंद है,
और वो तकलीफ दे रही है, दैट इज स्ट्रेस, एंड दैट कैन बी फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ व्हेन आई से बर्नआउट, दैट मीन्स जो स्ट्रेस एक लंबे टाइम के लिए चलता है, दैट बिकम्स द बर्नआउट. नाउ व्हाट इज अ सिंड्रोम इज समथिंग व्हिच इज keep on doing hindering. अब मैं एक बात बताता हूँ कि कंसिस्टेंटली अगर आप किसी चीज को मारे, यानी अगर बोलते हैं ना कि पानी का एक खतरा अगर पत्थर पे भी बार बार अगर गिर जाए, ठीक है, तो दैट मेक्स द रॉक ब्रेक. तो सेम उसी तरीके से आप स्ट्रेस को भी अगर बार बार वो आते जाए, आप उसके बारे में सोचे, फिक्रमंद हो, तकलीफदा हो, तो then it becomes burnout. So here is a small definition of what burnout is and how it happens. Emotional, okay, depersonalization and lack of achievement. Now, if I want you to make it very short, which is this is more of a clinical definition, which some of may not understand. भाई बर्नआउट होता क्या है? देखिए, आप अपनी जिंदगी में तीन 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 ऐसे एरियाज है जहां पे आप जीते हैं. एक योर पर्सनल, second is your professional, and third is your social. Now when I say personal, professional and social, let us discuss one after the other. प्रोफेशनल, जहां पे आप 8 से 10 घंटे बिताते आपकी लाइफ में, जो जॉब होती है, या आप एक बिजनेस मैन है या बिजनेस वुमेन है या घर के काम करते हैं, ये आपका एक आई वुड से अनटाइटल्ड प्रोफेशन है फॉर द वुमेन्स. सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, हस्बैंड को खाना देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स, हाउस होल्ड थिंग्स, I would consider that as a profession as well, but that is unpaid, and that doesn't have a title. But you ladies, those who are non-working, you are a leader without a title, because without you, okay, घर नहीं चल सकता, ठीक है, और मर्द आदमी बाहर काम नहीं कर सकता और बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता. सो be it your businessman or businesswoman or a professional or a house, I would say maker, a leader without a title, all these areas, क्या हो रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर है, यानी बिजनेस का प्रेशर, काम का प्रेशर, ठीक है, टास्क अचीवमेंट, सेल्स टारगेट्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, and at the same time, getting things done on a very limited period of time. This all brings you stress. ठीक है, जो लोग काम नहीं कर रहे, जो हाउस होम मेकर्स है, उन लोग के भी स्ट्रेस है, रात में जल्दी सोना है क्योंकि सुबह उठना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल का प्रोजेक्ट है उसमें हेल्प करना है, हस्बैंड के कुछ कमिटमेंट्स है उसको फुलफिल करना है. तो रात में जब आप नेक्स्ट डे का प्लान करते हैं, तभी से स्ट्रेस चालू होता है, स्टार्ट होता है, और ये हर दिन अगर आप ये स्ट्रेस लंबा खींचेंगे, तो दैट बिकम्स योर बर्नआउट. दैट गोज इन द फर्स्ट एरिया विच इज कॉल्ड प्रोफेशन. द सेकेंड एरिया इज योर पर्सनल. Now what basically happens is, you have got a lot of potential in you, but still you feel that you have not been positioned well. आपको ये लगता है कि यार मेरी सैलरी ठीक नहीं है, या मैं जो प्रोफेशन में हूँ प्रोफेशन ठीक नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कितना भी काम करूं घर में, ठीक है, फॉर दोज वुमेन हु आर नॉट बीइंग वर्किंग, कितना भी काम करो, आई एम नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज, मुझे वो ड्यू अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है. मैं कितना भी करूं, फिर हस्बैंड बोलेंगे कि जो है ना, यू आर नॉट डूइंग मच. मैं कितना भी पर्सनल लेवल पे आप ये सोचेंगे कि मैं कितना भी अच्छा टैलेंटेड हूं, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ सैलरी, जॉब वगैरह वगैरह, ठीक है. दैट बिकम्स योर पर्सनल स्ट्रेस. और जो तीसरा वाला है वो एरिया है सोशल. सोशल में क्या होता है, जब कभी भी आप कहीं दोस्त के पास गए, पार्टी में गए, दावत में गए, ठीक है, फिर उनके कपड़े, उनकी गाड़ी, उनका लाइफस्टाइल देखें, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, ठीक है. देन यू थिंक दैट ओके, इन स्पाइट ऑफ मी डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, but still I'm not getting what he has got or what she has got, and that makes you stressed.
सो तीन डिफरेंट एरियाज जो आपको स्ट्रेस देता है, और यही स्ट्रेस अगर लंबे टाइम के लिए गया तो दैट बिकम्स योर बर्नआउट। वो कैसे होता है कि लावा जब निकलता है, फूटता है पहाड़ से, इट डजंट हैपन जस्ट ऑन अ फ्लिक ऑफ अ सेकेंड। आप वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो नीचे पक रहा है, पक रहा है, पक रहा है, और एकदम आप इसको स्नोबॉल इफेक्ट बोलें या डोमिनो इफेक्ट बोलें, कुछ भी बोलें, ठीक है। तो ये जो कंटिन्यूअस आप हर दिन घुट रहे हैं, कुड़ रहे हैं, आप अफसोस कर रहे हैं, ठीक है, और वो बार 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 होने पे बर्नआउट हो रहा है। अभी आज क्या है, स्पेशली इन इन एट दिस टाइम व्हेन more or less everybody is running in a crisis situation, be it a job or a business, okay, and that crisis situation is putting you more stress। यानी सोशल प्रेशर आप पे बहुत ज्यादा है कि इन विच स्कूल योर किड्स आर स्टडिंग, ओके, वे डू यू लीव, ठीक है, कौन सी गाड़ी है, ये सोशल प्रेशर, सोशल स्ट्रेस plus personal stress all the time. There is a gap between what you want to do and what you are doing right now, and there is a gap and there is a stress। और फिर हमेशा ये सोचते हैं कि यार मैं बेहतर हो सकता हूं, बट नहीं हो रहा हूं या नहीं कर रहा हूं या अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये पर्सनल लेवल पे स्ट्रेस है, एंड दैट पर्सनल लेवल ऑफ स्ट्रेस विल गिव्स यू द बर्नआउट, एंड फिर उसके बाद हेल्थ इश्यूज वगैरह वगैरह, हम सारी चीजें बात करेंगे। तो इन शॉर्ट, okay, in these three areas, if you are getting anything unwanted requirement to the brain, that makes you stress, and that if it prolongs, that makes you burnout। आप समझ रहे होंगे क्यों मैं आपको बताता हूं कि आपका माइंड जो है दिस डजंट प्रोसेस नेगेटिव। ये नेगेटिव प्रोसेस नहीं करता। मैं जस्ट एक I'll give you a small example। Just sit relaxedly, okay, take a deep breathe, take a deep breathe, and I'll explain you, okay। Just close on your eyes, अपनी आंख बंद करें, ठीक है, take a deep breathe again, ठीक है। अब आंख बंद करके आप एक एप्पल के बारे में सोचिए। यानी एक सेब है, लाल, बड़ा वाला सेब है, ठीक है, एप्पल, रेड, बिग। नाउ डू नॉट थिंक ऑफ ए बनाना। बनाना, केले के बारे में मत सोचिए। पीला केला, येलो बनाना शुड नॉट कम इन योर माइंड। यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट। Please do not think of banana. Now open your eyes. I know if I open the chat box or if I open unmute everyone, you'll say that what have you seen? You'll say that sir, kela dekhe, pila banana dekhe। Why when I told you not to see yellow banana, मैं बोला कि पीला केला मत देखो, but still you have seen। Why? Because your mind doesn't process negative। अल्लाह ताला ने इतनी बेहतरीन चीज हमको दी। एनीथिंग दैट इज नॉट गुड फॉर यू, एनीथिंग विच इज नेगेटिव, योर माइंड विल नॉट प्रोसेस। ना होता ये है कि आप अब जैसा कि जो है ना, किसी को देखें, आप इम्प्रेस हो गए, ठीक है, सोशल में या जॉब पे आपने देखा कि यार ये तो कुछ नहीं कर रहा और इसको इतना ज्यादा अप्रिसिएशन, सैलरी वगैरह वगैरह मिल रही, और हर दिन एक ही काम करते रहे और एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, तो ये चीज नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव को आप बार 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 लेंगे, पहले तो माइंड प्रोसेस नहीं करेगा, अगर फिर उसके बाद उसको जबरदस्ती अगर आप प्रोसेस कराएंगे तो ये नर्वस सिस्टम हिल जाएगा। इट विल नॉट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर ये सेम लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी, आपको जितना कैपेसिटी है वायर की उतनी ही करेगी, उसके बाद फिर बर्नआउट हो जाएगा। तो इसीलिए हमको कोई भी चीज पे उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है जो कि बर्नआउट पे लेके जाएगा। हम वी विल डिस्कस इट मोर in the slides what exactly। So hope you understand what burnout is now। A small differentiation between stress and a burnout, I'll just quickly go through it।
If you have got any questions, you can ask me on the chat box immediately, or you can ask me at later. Now, stress is characterized as over engagement. कोई भी चीज को आप हर चीज को हाँ कह दिया, ठीक है, आप अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाले, एंड देन यू विल से दैट ओके यार इतना ज्यादा काम है। स्पेशली हम वर्किंग वुमेन से नहीं, जो घर में है उनसे देखते हैं कि यार सुबह से शाम तक वो बिजी है, बट फिर जब हस्बैंड आके पूछेगा क्या कर रहे हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं किया, ये नहीं किया, बोले मैं आई बीन बिजी सिंस मॉर्निंग, बट स्टिल देयर इज नो अप्रिसिएशन। वहां पे आके फिर एक होम मेकर लेडी वो स्ट्रेस हो जाती है। जॉब पे भी वैसे ही होता है कि आपने इतना ज्यादा काम किया, फिर कुछ ना कुछ तो बॉस ही निकालेगा। तो स्ट्रेस इज characterized as an over engagement, whereas burnout is disengagement। जब आप ये करते 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 क्या होता कि एक लेडी ये कहेगी कि यार डन, ठीक है, अभी मैं आई डोंट वांट टू डू इट, okay, why should I do it? In spite of me doing this much, I'm not getting recognized and appreciated। तो आप क्या करोगे, इससे दूर हट जाओगे, you will disengage। दैट इज द बर्न आउट। आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, आपको, हम आगे और देखेंगे व्हाट आर द सिम्टम्स एंड ऑल। ओके, नाउ in short, stress is you're taking more things, okay, under your control, and burnout is you're disengaging। भाई मुझसे नहीं होगा, आपकी जो मर्जी है करना है करो। At this point of time, then you need a therapy, you need a counseling, yeah, at a bigger level you may need meditation or medication you have to consult, etc etc। थोड़ा सा हमारे समाज में दिस इज सोशल टैबू। कहते हैं ना कि यार टैबू इन द सेंस हराम, यानी आप आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यू विल से दैट या भाई बीपी बढ़ जा रहा, मुझे प्लीज मत बोलो, ठीक है। आपका शुगर लेवल, डायबिटिक लेवल बढ़ जा रहा, भाई मुझे शुगर है, मैं मीठा नहीं खा सकता, ठीक है। आप ये चीजों को इजीली एक्सप्रेस करते, मुझे डायबिटिक है, मैं आई एम डायबिटिक और मैं बीपी पेशेंट हूं, आप इजीली एक्सप्रेस करते बिकॉज that has become a social norm now, every second person is having that। but जब आप ये कहोगे कि यार मैं स्ट्रेस्ड हूं, यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, यार मैं बर्नआउट में चला गया हूँ, देन पीपल विल से अरे यार ये तो फिर इसको तो फिर पागल के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, ओके, यू डू नॉट ओपनली से टू पीपल, दैट बिकम्स द बर्नआउट। लोग समझते नहीं है, सुनते नहीं है, या आप अपने आप में छुपा के रखते हैं, दैट बिकम्स योर बर्नआउट। सो I'm just differentiating quickly. Okay, in the stress, the emotions are overactive। very soon we will do a session, hopefully if next week we'll do it on emotions, kitne prakar ke emotions hai, and how to manage the emotions, and how emotions can help you in order to be a better person। emotion kya hota hai? Your love is an emotion, your hate is an emotion, anger is an emotion, sad is an emotion, surprise is an emotion, fear is an emotion। these आर इमोशंस, और ये इमोशंस होना जरूरी है। अगर आप नहीं हो, यानी अगर कोई आपको एकदम आपका दोस्त है, आपके बेटा बेटी भाई बहन कोई भी एकदम से जो बहुत दिनों से बाहर है या मिले नहीं, आके एकदम से आपको मिल गए, यू विल बी सरप्राइज, एंड आप ये कहोगे अच्छा ठीक है आ गए तुम। तो वो इमोशंस आपके बाहर निकलना जरूरी है। नाउ इन इन द स्ट्रेस व्हाट हैपेंस, द इमोशंस आर यू नो ओवर यू नो ओवरवेल्म्ड। आप वो बहुत ज्यादा बता देते, आप गुस्सा हो जाते, आप चीजें निकाल के फेंकते, आप घर में आते गुस्सा होते, और फिर बर्नआउट में क्या होता, आप बस यू कीप इट विथ योरसेल्फ, आप किसी को कुछ नहीं बोलते, ठीक है, बस ओके। कितना भी गुस्सा कर लो, आप बोलेंगे ठीक है, क्यों? आपके माइंड में कुछ और चल रहा है। जब आप इमोशन जाहिर कर देंगे, जब आपका गुस्सा जाहिर कर देंगे, ठीक है, जब फियर जाहिर कर देंगे किसी के सामने, तो आपका माइंड गोज रिलैक्स। बट बर्नआउट में क्या होता है, बट यू जस्ट कीप क्वाइट, यू विल नॉट रिएक्ट। अब ये रिएक्शन आगे चल के बहुत भयंकर भी हो सकता है। बोलेंगे यार कल अच्छा था ना बंदा, आज
एकदम what happened, brain hemorrhage, etc., etc. Why I am telling you this specifically? Because more or less we are going through this kind of situation. Now last week when we had a session, लोग डरते हैं, बट हमने देखा कि लोग क्लियरली ऑन द स्क्रीन दे आर सेइंग दैट आई एम गोइंग थ्रू द स्ट्रेस, okay, I am going through depression. अगर अगर the video has been recorded, okay, ये बोल दिया गया है, लोग बोल रहे हैं कि भाई मैं स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन, मुझे समझ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है. तो stress or depression, it's okay, that it still can be manageable, but do not go till burnout. So first one is engagement, second one is इमोशंस, एंड द थर्ड वन इज हाइपर एक्टिव. जैसा मैं बोला ना अभी के, जो है ना, आप गुस्सा हो गए, तो आप कोई भी एक छोटी चीज को आप बोलते हैं कि अरे भाई ये उतनी भी बड़ी चीज नहीं है, व्हाई आर यू गेटिंग सो मच हाइपर एक्टिव. ओके, छोटी छोटी बात को लेके आप गुस्सा हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर इन स्ट्रेस. नाउ इन बर्नआउट यू विल फील दैट ओके, होपलेस, नहीं यार अभी तो मेरे से, आई लॉस्ट दिस बैटल, मैं अभी मुझसे नहीं होगा. तो होपलेसनेस विल गो इन डिटेल when we have some other time, because I have to respect the time as well. So loss of energy is in the stress. Okay, loss of motivation is in the burnout. See, अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको, मुझे हर दिन सुबह में कुछ एनर्जी दे के भेजी है. ठीक है, हाउ आई गिव यू एन एग्जांपल इज, बिफोर लॉकडाउन, जस्ट इमेजिन वन डे बिफोर द लॉकडाउन, यू वर डूइंग सो मेनी थिंग्स. आप बहुत सारे काम कर रहे थे. ठीक है, आप स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, जॉब पर भी गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू हैव डन लॉट ऑफ थिंग. Sunday, the lockdown happened. You were at home, you sat, you relax. Okay. Monday, Tuesday, Wednesday, likewise, it has went up. Now, the Saturday before the lockdown, okay, you had a little bit of energy, you worked the whole day, you got tired, and you slept. Now, next Saturday, when the lockdown was there, okay, you haven't done anything, you just caught up, okay, you had your breakfast on the sofa on the phone, you had your lunch on the sofa on the phone, you had your dinner on the sofa on the phone, and then you got tired and you slept. ठीक है, एक हफ्ते में देखें आप, एनर्जी यहां पे जो थी, आपने दुनिया भर का काम कर दिया. ठीक है, थके और सोए. यहां पर देखें आप, कुछ नहीं किया, थके और सोए. यानी अल्लाह ताला ने हमको कुछ एनर्जी देते हैं हर सुबह में, दैट्स अ ब्लेसिंग. ओके, एंड देन यू लॉस्ट इट, whether you do some work or you don't do so. In the stress you lose that energy, काम करने का मन नहीं करता एकदम, यानी जो है ना, you will feel tired, lethargic, body pain, etc., etc. Now, in terms of burnout, आप करना ही नहीं चाहते. You understand the difference? स्ट्रेस में आपके पास एनर्जी नहीं है. ठीक है, आपको दिल नहीं, आपके पास एनर्जी है, नहीं है, मगर आपका दिल कह रहा है कि करना चाहिए. और बर्नआउट में क्या होता है, यू डोंट वांट टू डू इट, क्या फायदा, क्यों करूं, किसके लिए करूं, करके क्या फायदा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज अ डिफरेंस. मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके बात समझाता हूं. कोई अगर एक काम, वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता. अगर कोई एक काम वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो इसके दो वजह हो सकते हैं. एक, तो उसको वो काम करना नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेलिंग समवन टू, ये मेरे पास एसी का रिमोट है, मैं उसको बोला कि ये एसी का रिमोट यहाँ से ले जाओ और वो बाजू वाले कमरे में रख दो, या कोई भी एक काम बोला, तो वो नहीं कर रहा है. तो दो वजह है, आइदर ही डोंट नो हाउ टू डू द वर्क, दैट इज अ स्किल इशू. ठीक है, उसको नहीं पता कैसे करना है. स्किल कैन बी टॉट, वो सिखाया जा सकता है. ठीक है, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, दैट इज अ विल इशू. नाउ व्हेन इट कम्स टू विल, यू नीड कोचिंग.
आप क्यों नहीं कर रहे? इसके ऊपर कोचिंग, थेरेपी, काउंसलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द सेम गोज हियर। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप कुछ टैबलेट ले सकते, आप विटामिन ले सकते, आप कुछ जो है ना एक्स्ट्रा प्रोटीन, कार्ब्स, काफी सारी चीजें कर सकते हैं। बट आपका दिल ही नहीं कर रहा, देन इट्स अ कोचिंग इशू। यू मस्ट एंड शुड मीट अ कोच, therapist, counselor, etc., etc. So this is what it is. Now, stress leads to anxiety disorder. ठीक है, होपफुली आई थिंक जब हम इमोशंस का पढ़ेंगे तो हम एंजाइटीज वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, एंड बर्नआउट लीड्स टू डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन अगेन जैसा मैंने बोला, एक चीज को जो है ना ज्यादा सोचें, और फिर एंजाइटी में पैनिक अटैक्स आते हैं। ठीक है, इट्स ऑडियंस, आई ट्रूली रिस्पेक्ट कि ये टॉपिक को 1 घंटे में नहीं खत्म कर सकते, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ व्हाट पैनिक अटैक। नहीं, पैनिक अटैक आएंगे तो उसको कैसे ट्रीट करना है। यानी हाथों में एकदम बैठे बैठे पसीना आ जाएगा। ठीक है, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, लोगों को देखने से यू फील टेंशन। दिस आर ऑल द पैनिक अटैक्स। ठीक है, उसको हम जब थोड़े लेवल पे है, if you control it, that's good. If you take it on more further, that leads to depression and that leads to disorder. Now, stress can damage you physically, and burnout can damage you emotionally. स्ट्रेस जब ज्यादा रहेगा, आंखों के हल्के वो होंगे, शायद जो है ना बीपी अगर बढ़ गया, दैट कैन बी मॉनिटर्ड। ठीक है, आप पतले होंगे या फिर आप ओबीस भी हो सकते हैं क्योंकि आपको बहुत खाने का मन कर रहा है। ठीक है, दिस आर ऑल फिजिकल सिम्टम्स यू कैन सी। ठीक है, बाल चले जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्किन कलर चेंज होगा। ठीक है, झुर्रियां आ जाएंगी, lot of things you can see. A doctor, a counselor, a coach can easily see someone and can say that okay, he's in stress. Now in terms of burnout, silent, nothing on the ground. Okay, it is all internal, emotional, अंदर चल रहा है. Now, when it comes to stress, it is premature. When it comes to burnout, it is not worth living. वो कहेगा कि जिंदगी का मकसद नहीं है, जो भी कर रहा हूँ वो खाली हूँ, और जो है ना मेरे को अवार्ड्स नहीं आ रहे, रिकॉग्नाइजेशन नहीं आ रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड बर्नआउट। स्ट्रेस एक छोटी चीज है, फिजिकल है, आपके पास एनर्जी नहीं है, यू फील लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एनर्जी टू डू इट। whereas at burnout, okay, you feel lack of motivation, जिंदगी का मकसद नहीं समझ में आ रहा है, etc., etc. Now, I request, before I turn on to another slide, I request, God forbid you should not go through with this situation, either of stress or burnout. If you are going with this situation, please consult me, or if you want someone else, but please consult. And most importantly, if you see any of your family, friends, relative, neighbors, anyone, if you see these sort of things in them, इसमें क्या होता है, बातचीत से, ड्रेसिंग सेंस से, ये फिजिकल अपीयरेंस से ये समझ में आता है, तो आप उनके खांधे पे हाथ रख के बोलना, भैया हो जाएगा, it's possible, don't worry, we can come out of this. तो आप उनके लिए काउंसलर ढूंढे, कोच ढूंढे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So basically stress and burnout. Now going further, what are the effects of a burnout? If you have got any questions, you can quickly write it down, or if you have got any questions, you can put it on a chat box as well. Either ways, we will take it. Now, effects of a burnout. First, it's more or less half an hour we have been here. Can you put it on a chat box? Am I on the same page? Are you getting it? Do you have any questions? Just for 1 or 2 minutes, we can have a, not a break, but just a question and answer. ऐसा ना हो कि मैं ही कह रहा हूं and maybe my audio is not good, or maybe my video is not good. Okay, Moin sir, yes sir, okay, thank you. Getting it, getting it, very good. तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वी आर डूइंग दिस एवरी थर्सडे
by the series name Thankful Thursday. So please do come. Okay, my child has experienced burnout. Okay, we'll discuss this, Moin bhai, how we can come out of it. अगर आपका child, ठीक है, अर्ली स्टेज में है, प्लीज कंसल्ट, और उसको खत्म किया जा सकता है। आगे बढ़ जाएगा तो मुश्किल है। Okay, शी इज इन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग। ओके, सो प्लीज अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप बाद में मुझे ईमेल करना। वी विल हैव अ स्पेशल कोचिंग सेशन एंड देन वी कैन डिस्कस। देखें, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, हम अननेसेसरी ये बच्चों बिकॉज ऑफ सिलेबस, एग्जैक्टली मैं वही वहीं पे आ रहा था। देखिए, आप वो कैसा होता कि फूलिशनेस इज, आइंस्टाइन बोला कि फूलिशनेस इज टेकिंग, यू नो, वो तीन फोटोज अगर आप देखें तो मशहूर है। एक हाथी है, एक बंदर है, और एक मच्छी है, फिश। और तीनों को एक लाइन में खड़ा किया और बोला कि मैं एक ही टेस्ट दूंगा तुमको, एंड यू ऑल हैव टू पास इन दैट। अगर तुम्हारा पास अगर हो गए तो फिर मैं कहूंगा कि आप जेन्युइन है, यू नो, इंटेलिजेंट है, आप सक्सेसफुल है। एंड व्हाट इज द टेस्ट? यू हैव टू क्लाइंब द ट्री। तो हत्ती तो ये सोचेगा कि भैया मैं तो जिंदगी भर मर जाऊंगा मगर ये पेड़ नहीं चढ़ पाऊंगा। और मच्छी तो सोचेगी कि जो है ना, मैं पानी से निकलूंगी और मर जाऊंगी, कहां से चढ़ूंगी ये पेड़। और बंदर ये कहेगा कि यस, आई हैव क्लाइंब दिस ट्री। सो टेस्ट सेम है, सबका पैरामीटर सेम है, मगर वो जो काम करने वाला है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। तो सेम, हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई और चीज नहीं हो सकता। वी विल हैव दिस डिस्कशन sometime other, in other session. But what I'm asking is के सिलेबस, इंजीनियरिंग, प्रेशर, ये नहीं होना भाई, ये नहीं होना। प्लीज, आई अंडरस्टैंड, आई रिक्वेस्ट। जैसा मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन दिया क्लैनविन के बारे में, ठीक है, इट्स यू नो, right now most of the people those who comes for me to coaching and counseling, it is the same. आप एक बात बोल के मैं दूसरी स्लाइड पे आता हूं, जस्ट टू डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। आपके बच्चे में यकीन पैदा करिए, जहानत की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात मैं फुल 100% विथ ट्रस्ट कह रहा हूं कि जिंदगी में जो कामयाब होने वाले हैं वो जहीन से ज्यादा यकीन वाले लोग हैं। आपके बच्चे में यकीन पैदा करिए कि वो कामयाब हो सकता है, वो आगे बढ़ सकता है, वो अच्छा इंसान बन सकता है, वो जिंदगी में कुछ ऐसा बड़ा करेगा जिससे सब लोग माओ माशाल्लाह कहेंगे। ठीक है, बट उसको स्ट्रेस, उसको प्रेशर डाल के, उसकी वायरिंग खराब करके आप एट द एंड में क्या है, फिर आप ही सफर करते हैं। एनी हाउ, सो दिस वाज जस्ट अ टेस्ट वेदर माय ऑडियो वीडियो इट इज एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। नाउ कमिंग बैक टू our next slide is what is the effects of burnout. First one is physical, which I have already discussed a little bit on it. Okay, gases, which is called gastro issues. Okay, chronic fatigue. आप हर बार बार आपके जोड़ों में दर्द, पैर में दर्द, गर्दन में दर्द, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है। आपको स्ट्रेस है, गर्दन, पैर, हाथ, जोड़ों का दर्द जो है वो। और यानी डकाने जो आते ना, गैस्ट्रिक इश्यूज, हजम नहीं होता, खाना कम खाए, खाना कम खाने का मन कर रहा है, ठीक है, या खाने का मन ही नहीं कर रहा है, दिस गैस्ट्रिक इश्यूज। नींद नहीं आती, स्लीपिंग डिसऑर्डर, वे, यू नो, स्लीपिंग में वो स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो जब रेम, रैपिड आई मूवमेंट का एक वो एक स्टेज है, अगर आप वो स्टेज पे जब जाएंगे तो डीप स्लीप, फिर आपका माइंड जो है स्टेजेस में चलता, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ठीक है। अगेन ऐसे टाइम थोड़ा कम है, बट आपको ये देखना है कि आपका माइंड कौन से स्टेट में है। विल डिस्कस सम अदर टाइम, और इन द क्वेश्चन एंड आंसर्स में वी विल डिस्कस। तो कौन से स्टेट में है, वो स्टेट को आप नीचे लाना। बस लोगों को ऐसे होता है कि दे आर क्विक स्लीपर, लाइक फॉर एग्जांपल मी, आई एम ए वेरी क्विक स्लीपर। मैं, मुझे उतना इन्वायरमेंट मैटर नहीं करता, दिन भर काम करता हूँ, थकता हूँ, तो कहीं पे भी बिठाओ मुझे या लिटाओ मुझे, मैं सो जाऊंगा। बाज लोगों को, बिकॉज अगेन अल्फा, बीटा, गामा, थीटा वो स्टेट है, वो लोग को वो
स्टेट में आना ही चाहिए, यानी लाइट नहीं चाहिए, आवाज नहीं चाहिए, अपना ही घर चाहिए, एसी का ये टेम्परेचर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ बेटर कि आप बेहतरीन स्लीप कैसे से हो सकते हैं। वो पैटर्न्स रहते हैं, अगर 1-to-1 में डिस्कशन में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो पैटर्न में लेके आए, आप सो जाएं ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। आप जितना सोएंगे ना, आपकी बॉडी उतना अच्छा रिपेयर होगी। बाज लोगों को ऐसे होता है कि 10 घंटे सोते बट वो रैपिड आई मूवमेंट वाला जो मैं स्टेट बोला वो नहीं आता, तो फिर उठने के बाद भी टायर्ड फील करते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू सी, एंड एट द सेम टाइम जमीन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, वी आर लिविंग इन अ साउथ पोल, सो यू हैव अपना हेड कहाँ पे होना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स मैटर्स, ऑल दिस। और यूजुअली हमारे घर में क्या होता कि जो जो भी हमारा पिलो है या जो भी हमारा बेड है, नो, मैट्रेस के नीचे हम पेपर रखते, फाइल रखते, ये रखते, वो रखते। दिस समथिंग वेरी ऑड विच इज वेरी कॉमन। जब मैं कोचिंग करता हूँ तब ये लोग बोलते हैं प्लीज डू नॉट कीप एनीथिंग। मैंने एक लड़की की काउंसलिंग की थी, उसको बोला था तो वो बोले कि नीचे मेरे प्रिस्क्रिप्शंस रखे हैं डॉक्टर के, यानी दैट अफेक्ट्स। वो कैसे होता फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। दैट अफेक्ट्स, कीप योर मैट्रेस एंड पिलो एम्प्टी, कुछ नहीं रखना चाहिए, स्लीपिंग पोजीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वी विल डिस्कस, ओके। एंड व्हाट इज द अदर इफेक्ट ऑफ बर्न आउट इज obese, bp, cardio. These are all the issues which comes when you are having a burnout. आजकल हम देख रहे जिम करते हुए किसी का इंतकाल हो गया, 40s में है एंड ही डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बर्नआउट। कंपटीशन इतना है, कट थ्रॉट कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है जिसकी कोई हद नहीं। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है जहां पे आप समझेंगे और बर्नआउट और कंपटीशन के बारे में बेहतर समझ में आएगा। दो दोस्त थे, होप यू ऑल आर रेडी फॉर द स्टोरी, जस्ट टू रिलैक्स इट कि भाई बर्नआउट कम हो सकता है। जब से मैं एकदम इतनी बात कर रहा हूं तो बर्नआउट कम हो सकता है, कैसे कम हो सकता है, ऐसे इस प्रकार के स्टोरीज वगैरह जो आप सुन रहे हैं। वो दो दोस्त थे और बहुत ही पक्के दोस्त थे। उन्होंने कहा कि लेट अस गो इन जंगल टू हैव अ वेरी नाइस नाइट। हम रात में शिकार, दिन में शिकार करेंगे, उसको भुनेंगे और खाएंगे, पीस, रिलैक्स आउट ऑफ दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो दोनों गए, जाके जो है ना दिन भर रहा, और जब शाम शाम का वक्त हो रहा था तो उन्होंने देखा कि पीछे झाड़ी में से शेर की कुछ आवाज आ रही है और कुछ हलचल हो रही है। तो दोनों ने देखा, अरे बाप रे, ये तो शेर है, अभी क्या करेंगे, भागो। दोनों ने भागना शुरू किया। तो थोड़ा टाइम भागने के बाद एक दोस्त दूसरे दोस्त ने से कहा कि यार हम कितना भागेंगे, हम शेर से तो तेज नहीं भाग सकते ना, तो हम कितना भागेंगे। तो दूसरे दोस्त ने कहा, मुझे शेर से तेज भागना नहीं है, मुझे तुझसे तेज भागना है। तो अगर मैं तुझसे तेज भाग जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। सो दिस इज हाउ द आउटसाइड द कट थ्रॉट कंपटीशन इज। सो इन दैट कट थ्रॉट कंपटीशन, यस, स्ट्रेस होता है, होना भी चाहिए। स्ट्रेस में आएंगे तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट उसको प्लीज लंबा ना ले जाएं, ठीक है। वी विल डिस्कस मोर कि कैसे इसको वो करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज फिजिकल। फिजिकल में क्या है, आपको जोड़ों में दर्द, गर्दन में दर्द, गैस्ट्रो इश्यूज, ठीक है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स एंड ओबिसिटी, ओके। नाउ मेंटल इश्यूज में क्या आएंगे कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, हर चीज को देखते देखते घबराहट, दैट इज एंजाइटी के जो ना, मैं कैसे करूं, मुझे डर लग रहा है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल ज्यादातर बच्चे इसी चीज में हैं, और वुड से बच्चे, बट बड़े भी कहीं ना कहीं इसमें आ रहे हैं, बट बच्चे बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द पीर प्रेशर, बिकॉज ऑफ द सिलेबस एक्सेट्रा, एंड दैट एंजाइटी इज लीडिंग टू मैं नहीं कर सकता। यानी the other day I was talking to my client. मैं बिल्कुल यानी दिल की गहराई से ये बात कह रहा हूँ, बच्चा कोई बड़ा नहीं है, ठीक है, ही इज जस्ट इन 8th 9th ग्रेड। उसकी सेकेंड यूनिट टेस्ट में मार्क्स कम आए एंड द वुमन स्टार्टेड यू नो scolding the kid, shouting at the husband and cursing on our own self.
सेइंग दैट शायद मेरी तरफ से तुम नहीं पढ़े, और बच्चे को कह रही है कि जो है ना तुम पढ़े नहीं और तुम कुछ नहीं कर सकते एक्सेट्रा, एंड कर्सिंग ऑन द हस्बैंड सेइंग दैट ओके यू आर फिट फॉर नथिंग एंड यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ द किड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरा घर भवंडर। क्यों? जस्ट 8th क्लास एंड इट्स अ सेकेंड यूनिट टेस्ट, है ना। चलो अगर हाफ ईयरली भी एग्जाम कहने, भाई इतना जरूरी, इतना ज्यादा एंजाइटी में आने का जरूरत नहीं है। अगर ये आएंगे तो आपका बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। नाउ सिनिसिज्म एंड इमोशनल अटैचमेंट क्या होगा? कोई भी चीज का मन नहीं करेगा, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया, हर चीज में जो है ना वो थोड़े बच्चे रहते ना, क्या खाओगे? बोले कुछ भी। क्या पहनोगे? बोले मम आप जा रहे हैं ना, यू यू ब्रिंग वॉट एवर यू वांट टू ब्रिंग। व्हाई? बिकॉज इमोशंस नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख लें। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया सेल्फ एस्टीम। अपने आप का एस्टीम कम हो गया। बिल्कुल ऑल द टाइम यू फील दैट यू आर नॉट वर्थ। ठीक है, आप अपने आप को लो फील कराएंगे, सेल्फ पिटी में जाएंगे। आप वो थोड़ा सा एक इश्यू होगा आपके स्ट्रेस को। ठीक है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप इश्यूज विल गो a little bit faster because it's just 15 minutes. As I said, I am really very sorry, 1 घंटा इस टॉपिक को जस्टिफाई नहीं करता, बट जस्ट टू गिव अ ब्रीफ आई हैव कम हियर। इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन कम ऑन टू मी। ओके, रिलेशनशिप इश्यूज में क्या होगा? पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल रिलेशनशिप इश्यूज खराब होंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, आप लोगों से मिल नहीं पाएंगे, उनको उनका उनके फोन कट करेंगे, ब्लॉक करेंगे, उनको मिलने का मन नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं थोड़े टाइम में, अरे जाने दे भाई, बोरिंग कैंडिडेट है, नहीं मिलना है इससे। ठीक है, इससे दूर ही रहो, ये हमेशा मिलता है, नेगेटिव बात करता है, या सुस्त रहता है, खामोश रहता है। ठीक है, ऐसे लोगों को हम अपने से दूर करते हैं। बराए मेहरबानी आज से जो है ना थोड़ा सा इन लोगों को दूर ना करें, इनको जो है ना थोड़ा सा करीब करें, ताकि ताकि आपके पास ऐसा ना हो कि ये लोग दूर जाकर फिर आपसे थोड़ा सा बिछड़ कर फिर स्ट्रेस इश्यूज वगैरह वगैरह सारी चीजें होंगी। ठीक है, चौथी चीज फाइनेंशियल इश्यूज जहां पे आएंगे, जब आपका स्ट्रेस होगा, बर्नआउट होगा, यू विल स्पेंड मोर। थोड़े लोगों को होता है शॉपिंग की आदत पड़ जाती है, वो शॉपिंग ज्यादा करते हैं। थोड़े लोग यू नो एक्स्ट्रा वैकेंस जो है वो ज्यादा होता, दैट कैन ब्रिंग यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। क्या है कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इट? ओके, वी विल डिस्कस इफ टाइम परमिट्स, और यू कैन गिव मी अ कॉल, वी कैन डिस्कस दिस मोर। ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस थोड़ा सा मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, उसके बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा है तो पर्सनली वी विल डिस्कस। फाइनेंशियल इश्यूज में क्या होता कि सबसे बड़ा स्ट्रेस आज के टाइम पे वही है। और अगर वो जब हो, आप कम कमाए तो परेशानी, और ज्यादा कमाए तो फिर जो है ना एक्स्ट्रा वेगन्स में आते, वहां पे आके आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा। मैंने इससे पहले भी बोला था कि अगर दुनिया भर का सारा पैसा एक जगह जमा कर दूं और फिर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, तो जिम रॉन ने कहा कि 3 से 5 साल में जिसके पास जितना पैसा है वो वापस चला जाएगा। बिकॉज मनी अर्निंग, मनी मैनेजिंग एंड मल्टीप्लाइंग मनी इज एन आर्ट, वो हर किसी को नहीं आता। तो वी हैव टू लर्न इट। तो हमारा जो है ना, जब आप स्ट्रेस में होंगे, बर्नआउट में होंगे, तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे। वाई? बिकॉज यू हैव टू गो टू लॉट ऑफ मेडिकल थिंग्स, ये आजकल कोचिंग, काउंसलिंग वगैरह और थेरेपीज, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आपको नमाज पढ़ना, रोजा रहना, ठीक है, कुरान पढ़ना, इससे दूर हो जाएंगे आप, क्योंकि आप बर्नआउट स्ट्रेस मैटर में। जब कभी भी बच्चों को कहते हैं कि भैया नमाज पढ़ो, मस्जिद को जाओ या कुरान पढ़ो बच्चों, तो दे डू नॉट डू इट। तो हम क्या सोचते हैं, शैतान भटका रहा, और लोग साथ नहीं हैं, इन्वायरमेंट खराब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट देर इज अनदर एंगल विच इज stress which has been going on in your kid. Okay.
इम्पेयर पर्सनल ग्रोथ, यानी बच्चे की हाइट रुक गई, या उसका आईक्यू लेवल कम हो गया, ठीक है, दैट इज वन वन सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। ओके, जॉब रिलेटेड, वर्क रिलेटेड इश्यूज विच इज लॉट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करता रहेगा, अपने स्किल्स को बेहतर नहीं करेगा, these are the symptoms of stress. If anyone has seen this, or if anyone is going through this, kindly immediately consult a doctor, psychologist, counselor, etc. Okay, and now moving to the another slide. I'm sorry, I'll just go a little bit faster. Now, what are the symptoms? Again, physical, emotional, and behavior. फिजिकल का मैंने ऑलरेडी बात कर ली है कि जो है ना गैस्ट्रो इश्यूज होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ यू हैव गॉट one or two questions, we will take it, or just one question we will take it, or else I can quickly change this slide, ठीक है। इमोशंस जो है, जैसा मैंने बोला, लव, एंगर वगैरह वगैरह, ही विल नॉट एक्सप्रेस द इमोशंस। जस्ट अंदर ही अंदर एक समंदर है जो दबाए बैठा है। अब मैं बताता हूं आपको, ज्यादातर जो पेरेंट्स है, दे कीप देयर किड मोर टायरेंट, गुस्से में और डिसिप्लिन में रखते हैं। तो वहां पे क्या होता, बच्चा अपने इमोशंस दबा के रखता। Why? Because you are at a position of an authority right now. Bacha is not in a position of authority, so he just control his emotions. फिर एक टाइम ऐसा आता जब बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, नाउ ही इज द मास्टर ऑफ हिज लाइफ, नाउ ही इज नॉट अंडर यू। वो टाइम पे आपको छोड़ के चला जाएगा। फिर कहेंगे कि मैंने इतना सब कुछ किया वगैरह वगैरह, बट यू आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू द किड। वो स्ट्रेस में है, वो बर्नआउट अंदर दबा के रखा है। एक टाइम आएगा, वो आपको बराबर बता के बताएगा कि भाई यस, वो बच्चा नमाज भी पढ़ेगा, कुरान भी पढ़ेगा, बट इंटरनली ही इज नॉट इमोशनली कनेक्टेड टू यू, बिकॉज इन द चाइल्डहुड यू हैव डन सो मच स्ट्रेस्ड ऑन इट कि वो बर्नआउट हो गया और वो इमोशनली आपसे डिस्कनेक्ट हो गया। तो बेहतरीन तरीका क्या है, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ना देखें। डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, 100% ज़रूरी है, बट डिसिप्लिन ही जिंदगी नहीं है। प्लीज, ठीक है। थोड़ा डिसिप्लिन करें, थोड़ा बच्चों को मिस्चिफ होने दें। अगर बच्चे ना हो तो फिर कौन होगा, ठीक है। अगर हम बड़े अगर शरारत करें तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। Anyhow, so emotional, you should see that the stress should not go to that level. पहला physical, emotional, and then behavioral। जो मैंने आपको देखा, hopefully we will share these slides on a WhatsApp or email, whatever the way convenient. You can send me an email, I will share you the slides. Okay, you can go through it, what sort of behavioral issues you will have। lack of interest, जैसा मैंने बोला, नेगेटिव ब्लॉक्स आएगा, ठीक है, हर काम करने की इच्छा नहीं होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू विल गो ऑल दिस थिंग्स when you are in stress and burned out. Now, how to overcome this is what most important is, and we will go through this. You understand what is going to happen and how you can easily connect it. Now, सबसे पहली चीज सेल्फ केयर, change in the lifestyle, and then personal help if you want it. Self care आज की हाथ जोड़ के कहता हूं, हमारी बहनें, हमारी माएं बहुत पीछे है इसमें। प्लीज, I request you all, do any sort of exercise, do any sort of way wherein you should take care of yourself first. लव योर सेल्फ फर्स्ट। अब आप देखें, जब मैं सेल्फ केयर की बात कर रहा हूं, आई बिलीव ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू माइट हैव गॉन ऑन ऑन एन एरोप्लेन। वहां पे क्या कहती है एयर हॉस्टेस, जब वो या वीडियो पे बताता है कि व्हेन इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी पुट द मास्क योरसेल्फ फर्स्ट। आप अपने आप पे मास्क डालें, फिर अपने बच्चे जो भी है, ठीक है, उनको दें। सो यू फर्स्ट। I repeat, this is not being selfish. Self care and selfishness are two different things. Self care is that you love yourself. At a certain point of time, you see that, okay, it is my body, it is my mind, it is my emotion that you have to take care of.
नाउ सेल्फिश क्या होता है? इट इज ओनली माई माइंड, इट इज ओनली माई इमोशंस एंड इट इज ओनली माई लाइफ विच इज आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ। यू अंडरस्टैंड? ओनली का जब लफ्ज आएगा, जब आप सेल्फिश हो जाएंगे, दिस इज माई अगर बोलेंगे तो आप सेल्फ केयरिंग हो जाएंगे। आप अगर सेल्फ केयरिंग होंगे तो परिवार का ध्यान रखेंगे। सेम गोज विद जेंटलमैन ऑल्सो। ओके, वो लोग जॉब पे इतने ज्यादा स्ट्रेस हो जाते, घर जाके अपने इमोशंस एक्सेट्रा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, अच्छी हेल्थ नहीं रखते, तो फिर आगे लावा जो है ठा करके फूट जाएगा। तो वहां पे आके आपको परेशानी होगी कि 3 डिफरेंट स्टेप्स है: सेल्फ केयर, change in the lifestyle, and talk to the professional if you need any help. Now what are the things that you have to do? First one is exercise regularly. I request, in fact I beg, please, I beg, exercise is the key. भले ही आप 15-20 मिनट्स करें, घर पे करें, जिम नहीं जा सकते, नो प्रॉब्लम, मेन है नो प्रॉब्लम, वुमेन है नो प्रॉब्लम, किड है नो प्रॉब्लम, एक्सरसाइज इज द की। क्यों? DOSE, ये 4 एंजाइम्स है, केमिकल्स है जो आपके माइंड में से रिलीज होते हैं। गो ऑन द इंटरनेट, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। गो ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड इट आउट व्हाट इज द DOSE। ये क्या है एंजाइम्स और केमिकल्स, और ये क्या काम करते हैं? ये थोड़ा सा आप पढ़ें, दैट कैन हेल्प यू। ओके, नाउ एज आई सेड, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर। आप अपना थोड़ा सा ध्यान ज्यादा रखें, जैसे कि सेम गोज एज एन एयर होस्टेस शोज दैट यू हैव टू पुट योर मास्क फर्स्ट देन टू अदर्स। कोविड में हमने देख लिया सेल्फ केयर कितना इंपॉर्टेंट है। आज से आप अपनी आप को प्रायोरिटाइज करें, सेल्फ पिटी में ना रहें, ठीक है। तीसरी जो चीज है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आई नो the world is going on a such a pace wherein everyone is busy. किसी के पास अगर आप, मैं कहूँ भाई मुझे 1,000 रुपए दो, तो कोई भी निकाल के दे देगा, यार कलीम भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो और यू आर अ गुड ट्रेनर एक्सेट्रा कोच, टेक दिस 1,000 रुपीज। बट इफ आई आस्क हिम दैट भाई मुझे 1 घंटा दोगे, बोलेगा भाई आई एम सॉरी, आधा घंटा, बोले 10-5 मिनट का टाइम है, कुछ अगर बोलना है तो बोलो। तो आज के टाइम में टाइम इज crucial. You have to manage it effectively. Put a timetable on everything what you do. थोड़ा सा उसमें आगे पीछे हो सकता है, but make sure that whatever you want to do, okay, that is been written, and that is, if not written, at least that should be clear. Now set your priorities. Okay, जो भी आपकी हेल्थ है, कैरियर है, रिलेशनशिप है, मनी है, स्पिरिचुअल है, ये एरियाज ऑफ लाइफ है। These are the areas. There are 7 areas of life. Go on the internet, check it. Okay, ask me, I will help you out to find out. ये एरियाज को प्रायोरिटाइज करें कि कौन सी चीज आज की टाइम में आपके लिए प्रायोरिटीज है, ठीक है। लर्न टू से नो। हर चीज यस नहीं हो सकती, काफी सारी चीजें नो अगर आप कहें, ठीक है, तो आप देखो, वो एक अच्छे ऑथर ने कहा ना, यू कैन नॉट मेक एवरीवन एवरी टाइम हैप्पी। इफ यू वांट टू डू इट, then sell an ice cream. So you as a leader, you cannot make everyone every time happy. So learn to say no, put a stop block saying that ये नहीं हो सकता। eat healthy, eat on time, get sufficient sleep। मैंने sleep के बारे में ऑलरेडी थोड़ा बोला। healthy, आप इतना एटलीस्ट आप कैलोरीज नहीं मालूम कर सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, उसको राइट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट यू सी दैट टुडे आई हैव आज दावत थी, बिरयानी चिकन ज्यादा हो गया, तो कल थोड़ा सा वो करें। अगर वो कंटिन्यूस में अगर आपको दावतें आई और वही खाते रहेंगे, देन इट वुड बी अ प्रॉब्लम। ओके, टेक ब्रेक, रिलैक्स। मी टाइम कहा जाता है, यानी आप कुछ भी करें भाई, आधा घंटा 1 घंटा, इट्स मी टाइम। आई डू नॉट वांट एनीबॉडी इन माय लाइफ। ओके, बी इट वुमन मैन, एवरीवन। ओके, आप प्लीज अपना टाइम निकाल, जो आपको अच्छा लगता हो, प्लीज डू दैट। मे बी आर्ट, क्राफ्ट, कुछ भी, अगर आप म्यूजिक कुछ सुनना चाह रहे, कुछ लिखना चाह रहे, कुछ पढ़ना चाह रहे, कुछ खेलना चाह रहे, एनीथिंग। मी टाइम इज नेसेसरी आज के टाइम में। अगर ये मी टाइम, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे, then you will ended up in a hospital and all these things which we have already discussed. Okay, take breaks,
बी ए मॉर्निंग पर्सन। मैं हैदराबाद से हूँ, यहाँ पे थोड़ा कल्चर नहीं है मॉर्निंग होने का, बट प्लीज ट्राई टू डू दैट। ओके, फॉलो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जो भी है मोबाइल ना रखें, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अननेसेसरी चीजें, ग्रुप्स आर्काइव में डाल दें, उनके उनकी नोटिफिकेशन म्यूट कर दें, एक टाइम लगाएं उसको। ये कहना बहुत आसान है, बहुत लोगों ने किया है, करना मुश्किल है। ये करने के लिए आपको एक कोच रखना पड़ेगा जो कंटिन्यूअस आपकी चीजों को मॉनिटर करता रहेगा, तभी जाके आपसे हो सकते हैं। अवॉइड नेगेटिविटी। ओ क्यू पी फॉर्मूला एक बहुत अच्छा है। ओनली क्वालिटी पीपल इन योर लाइफ। यू शुड हैव ओनली क्वालिटी पीपल, ऐसे लोग जो मुझे आगे बढ़ाएं, बेहतर कराएं, ठीक है, जो मुझे हौसला दे, जो मुझे हिम्मत दे। वो थोड़ा होता है ना, हर टाइम पे जो है ना नेगेटिव, यार ये वेबिनार से क्या होगा, 1 घंटे इसके सेशन से क्या होगा, कलीम कौन है, इसके बोलने से क्या, ये सारी चीजें नेगेटिव है। ऐसे लोगों को कहो भैया थोड़ा तुम दूर रहो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो हौसला हो, हिम्मत रहो, विजन रहो, टाइम। ऐसे लोगों के साथ, ये देखो, भागने वाले के साथ जब आप रहेंगे ना तो आप भी भागेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज, आप किसी को साथ पैदल लेके निकले आज शाम में वॉक पे, ठीक है, विदाउट सेइंग एनीथिंग, जस्ट वॉक फास्टली, ही विल आल्सो वॉक फास्टली। Without saying anything, just walk slowly, he will also reduce his speed. Without saying, why? Because your subconscious mind communicates more than your conscious mind. So you should have only quality people. Build resilience, यानी फेलियर हर कोई होता है। ये नहीं, जिंदगी में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जो फेल नहीं ना हो। मैं भी फेल हुआ हूँ, कई बार फेल हुआ हूँ, ठीक है। द गुड थिंग इज दैट यू हैव टू कम अप। वो शेरशाह सूरी की अगर मैं कहूँ कि बहुत जबरदस्त वाकया है। वो एक बार जंग लड़के हार के जा रहा था, उसने एक पहाड़ के पीछे अपनी जान बचाने छुपा हुआ है। उसने देखा कि एक चींटी है, तो कुछ दाना लेके ऊपर चढ़ी, गिरी, ऐसे 7 बार की, और 8वें टाइम में सक्सेसफुल हुई। तो उसने कहा कि यार एक चींटी अगर इतना कर सकती है तो फिर मैं तो इंसान हूं, मैंने क्यों नहीं कर सकता। फिर दूसरी बार आया और उसने जंग बो किया। तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, but you have to build resilience, that you have to come back next time with more energy, more calculation, and more descriptive plan. This is one of the way by which you can come out of one. Do charity, social work, आप कुछ एनजीओ ज्वाइन करें, ठीक है। आप देखें, योर सोशल बीइंग, ठीक है, यू आर नॉट अलोन। आप दुनिया में अकेले नहीं आए, आप दुनिया से अकेले नहीं जाएंगे, ठीक है। आपको 4 लोग चाहिए आपको दुनिया से विदा करने के लिए भी। सो वी आर सोशल, तो आप थोड़ा सा एनजीओ से के साथ काम करें, दैट गिव्स यू अ रिलैक्सेशन। कोई ओल्ड एज जाके काम करें, कोई यंग बच्चों पे काम करें, ठीक है, जो कोई पुअर गर्ल्स पे काम करें, कोई जो है ना विडो वुमेन्स पे काम करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, ठीक है। एक बात मैं कह रहा हूँ, अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको अच्छे घर में पैदा किया, विदाउट इवन आस्किंग यू, दैट इज ए ब्लेसिंग। अगर आप यहाँ नहीं पैदा होते, अगर कहीं दूसरी जगह पैदा होते जो गरीब घर में है, या स्लम्स ऑफ एनी अदर प्लेस और एनी अदर सिटी, देन यू वुड हैव बीन in the same thing. So that is a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to give it back to the society. So do some social work that can release your stress out of it. Okay, seek professional help, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप कोई एक काउंसलर कोच वगैरह से बात करें, और स्पिरिचुअल कनेक्ट रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बेहतरीन इंसान, बेहतरीन लीडर, एंड स्टिल ही सेज 100 times I say astaghfirullah and alhamdulillah, astaghfirullah for anything which I have done bad, okay, in just 1 hour or whole day, okay, and alhamdulillah for a lot of things, okay. आज साइंस ये मान चुकी है कि more than 90% of your body is not under your control. ओके, 90% से ज्यादा, दैट मीन्स मेरे पलक का झपकना, सांस ऊपर जाना, नीचे आना, अगर मैं कुछ खा लूं तो हजम होना और फिर इजाबत आना, इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। सिर्फ एक जो द ब्लिंक आई डू विथ माय आईज, इफ दैट डजंट हैपन, देन यू विल गो इन लॉट ऑफ डिजीजेस। सो you are not controlling your body, there is someone else who is controlling your body, so you should thankful to him, okay, and you should be graceful to him, and you have to have some time of spirituality so that you can relax what is the stress which you have now. With this
Any other questions, or we will have this session over? Okay, it is exactly 8 o'clock. I'm done with my session. If you have got any questions, let me know. There are a few things in the chat. I'll just quickly go through it. How to remove their emotions? Okay, I don't know. Oh, there is a big questions here. There are different ways. Can we get the recording? Yes, we can. You can get the recording. Okay. Can we have next session on overthinking? Yes, definitely. We will have that session. Okay. The Okay, video the is video is available on the available on the YouTube. YouTube. Yes, you can Yes, see you that. can see that. Okay. Okay. अस्सलाम वालेकुम सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हम इमोशनल मैनेजमेंट पे बात करेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट इज इमोशंस एंड हाउ वी कैन कंट्रोल अवर इमोशंस वगैरह वगैरह. दिस इज अ सीरीज. दिस इज नॉट जस्ट वन टाइम आई केम एंड आई हैव डन एंड गॉन. Okay, I request you to please put a pen and paper and sit it down. Okay, and I request you that those who are going through this or someone else who is going through this, okay, share with them. Okay, and then ask them if they have got any questions. Let me know. My details are on the chat box. And as of now, any one or two questions? It's exactly 8 o'clock. So what we have learned today is a burnout. Okay, what burnout is, the difference between stress and burnout, and how we can come out of stress and burnout. So I request you please to go through the slides, go through the recording again and again, pause it, okay, and see where exactly you're there. Okay, and there is one thing in the chat box. Yeah, please post your questions in the chat if any. Okay, बी इनोनिमस. अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसा मैंने बोला ना, इट्स ए सोशल टैबू. लोग ये कहेंगे कि यार, व्हाई यू हैव गॉन टू दिस थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट एक्सेट्रा. इट्स ए सोशल टैबू. प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ एनीवन. ओके, you are the master of your life. You have given a choice for you to become more better. I'm from Hyderabad, brother. We can connect over the phone wherever you are from. Okay, we can connect over the phone. If you have got you said that you have issues with your daughter. May Allah bless her. वो हमारी जिम्मेदारी है भाई. वो उम्मत की एक बहन है, उम्मत की एक बेटी है. हमारी जिम्मेदारी है, हमको उसको बर्नट आउट से निकालना है. With this, I would like to end my session. You have been a very good audience. Okay, and 1 घंटा ये कम है. इसमें थेरेपीज है, इसमें एक्सरसाइजेस है, इसमें स्ट्रैटेजीज है, इसमें टूल्स है. ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते. इंशाल्लाह we will see over the period of series how we can able to do it. तो इससे आप बाहर आ सकते हैं. It is possible. And if you can connect me one to one, we can have more discussion. Okay, the number which is there, which is already been given before. Okay, that here is the another number which has been given. Okay, you can connect me on this. एक छोटा सा रिव्यू अगर आप गूगल पे कर दें तो that would be more good. Okay, here is the scan. Take out your phone, just do the scan, and then give the review. And that is what I want from you. If you can do it, that would be really really great. I thank you for joining, and looking forward to see you next Thursday 7 p.m. with a different topic, emotional intelligence. In the meantime, if you have any questions, send me a WhatsApp message and I'll be happy to answer you. अल्लाह आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, ईमान के साथ रखे, दौलत के साथ रखे, आराम से रखे, स्ट्रेस को दूर भगा दें. एक लास्ट थिंग you can come out of the stress easily is breathing exercise. Take a deep breath, hold on for a few seconds, रिलीज इट. नाउ ब्रीथ. नाक से नहीं, पेट अंदर जाना चाहिए. प्रॉपर आपका पेट अंदर जाना चाहिए. होल्ड ऑन फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स इट. ब्रीदिंग ये 3 बार करें.
बार बार करें, that can give more supply of oxygen to your mind, that can give a less stress, that can relax you. So the technique is take a deep breathe, hold on for a few seconds, and then as a release करें, then you will be less of a stress.